Thank you so much, Dr. Asif Saab. Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I am honored and pleased to be the part of this entrepreneurial skill development program on processing, preservation, marketing of milk as functional food. I congratulate the entire faculty of veterinary sciences and animal husbandry cost for time and again organizing such a wonderful programs for the dairy entrepreneurs of Jammu and Kashmir. Ladies and gentlemen, I am one of the servants of more than 45,000 local milk producing farmers of Jammu and Kashmir, and today I am here to represent a farmer-centric organization, namely Jammu and Kashmir Milk Producers Cooperative Limited, which is a replica of Amul model and unique of its kind in the entire Jammu and Kashmir. JKMPCL is marketing its milk and milk products under the brand name of Snowcap, as rightly said by Dr. Asif Saab. And this brand is owned by the farmers of Jammu and Kashmir themselves. So far as today's program is concerned, I would like to make a mention here that for any entrepreneur, it is very paramount for them to analyze 4 important aspects prior to the establishing of any business entity, and those are strengths, weaknesses, opportunities, and threats of a particular sector wherein they are looking into establish a business entity. So, while forming any enterprise, you need to keep these 4 aspects into consideration, and I would like to suggest that you should not indulge into considering the preconceived beliefs, and instead you should focus on to the relying on real-time requirements, real-time contexts. So let's start with this brief presentation on JKMPCL and start with the strengths of our organization. At the foremost, the strength of JKMPCL is its structure itself, which I will explain in the slides ahead. Secondly, the local milk production of Jammu and Kashmir, wherein we have marketable surplus of 15 lakh liters of milk per day. JKMPCL has got a robust network of more than 1,000 village-level dairy cooperative societies supported with cold chain infrastructure set up in the catchment areas. Adequate logistic transportation facilities for milk from village to these bulk milk coolers and from bulk milk coolers to processing units. Establishment of state-of-art dairy processing units having capacity of 1,50,000 liters of milk per day. Equipped with sophisticated laboratories set up at each level, technology intervention throughout the value chain, and skilled manpower deployment across. JKMPCL was established in the year 2004 under the able leadership of Amul on the basis of integrated cooperative structure, prominently known as Amul pattern, and wherein farmers are directly linked with the consumers by way of eliminating middlemen. This is the glimpse of one of our village level dairy cooperative societies. Presently we are procuring more than 1,40,000 liters of milk per day from 6 districts of Jammu and 9 districts of Kashmir, including remotely located areas of Rajouri, Ramban, Kupwara and Bandipur, through more than 1,000 village level dairy cooperative societies. JKMPCL symbolizes faith in the cooperative system and places the instruments of technology into the hands of farmers. Milk producers get printed information for the milk they pour to the dairy village, and milk prices are determined on the basis of fat and SNF content of milk in the transparent and accountable manner. This is the milk procurement network of JKMPCL spread across entire Jammu and Kashmir. JKMPCL, in collaboration with J&K Rural Livelihood Mission, has mobilized and organized around 219 self-help group based dairy villages, which are solely being operated by women members themselves, and they earn a livelihood of around 5,000 to 8,000 rupees per month out of doing dairy business with JKMPCL at their doorsteps. अगर हम पिछले 10 साल की बात करें तो साल 2010-11 में हमारे साथ 354 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एसोसिएटेड थी, और आज की डेट में 1000 से ज़ायद विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने कोऑपरेटिव नेटवर्क में इनकॉर्पोरेट की है।
ये हमारा फार्मर मेंबरशिप बेस है। During the year 2010-11, we procured around 15,000 liters of milk per day, and presently we are procuring around 1,40,000 liters of milk per day from our associated milk producing farmers. Further, we envisage to procure 5 lakh liters of milk per day by the end of year 2025, covering 1 lakh milk producing farmers through more than 2,000 village level dairy cooperative societies. लास्ट ईयर जो हमारा बिजनेस टर्नओवर है वो 227 करोड़ रुपए का रहा है, हमने अचीव करा है 2021-22 में, और इंशाल्लाह आइंदा उम्मीद है साल 2025 तक हम 500 करोड़ रुपए का टर्नओवर का जो टारगेट है वो भी अचीव करेंगे इंशाल्लाह। Well, this is the most important structure established in the value chain of JKMPCL called as bulk milk cooler, which have been established in the clusters of village level dairy cooperative societies in almost all the districts of Jammu and Kashmir. Bulk milk coolers are extensively used to cool down the milk below 4 degrees centigrade to mitigate the microbial growth and to prevent the spoilage of milk, thereby securing the livelihoods of farmers. JKMPCL has created chilling infrastructure of 80,000 liters of milk per day in Kashmir division and 1,20,000 liters of milk in Jammu division. This is one of our processing units at Chashma Shahi, Srinagar, having capacity of 50,000 liters of milk processing per day, equipped with globally accepted state-of-art machinery and an inbuilt sophisticated milk analytical laboratory, which is one of the best in northern India and unique in the entire Jammu and Kashmir. Similarly, we have another dairy processing plant situated at Satwari, Jammu, having 1 lakh liters of milk processing capacity per day. All these strengths of JKMPCL you have just came across enable us to adhere with our modus operandi. क्योंकि हमारा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है कि to provide remunerative market for our farmers, which we term as value for many, and distribute quality milk products among our consumers, which translates into value for money for them. Although over the years we have achieved remarkable growth, still there are so many impediments coming in the way, and let's have a look over those. यहाँ पे जो आप में से एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक्सप्लोर कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे एक है, तो ये वीकनेस डेयरी सेक्टर की, बट इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं कि डेयरी सेक्टर में हम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करें, तो सबके माइंड में आता है जी मुझे डेयरी फार्म डालना है, सबके माइंड में आता है कि मैं प्रोसेसिंग यूनिट डालूँ, है ना, यही आता है ना दिमाग में। लेकिन इस तो वीकनेसेस तो आपने देख ली, ये अब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट बेस्ड ऑन द फंक्शनिंग ऑफ JKMPCL कि हम JKMPCL में क्या कर रहे हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हम अभी 1000 विलेज लेवल डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, और JKMPCL में हम आइंदा फ्यूचर में इंशाल्लाह वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे। वैल्यू एडिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर। तो इसमें हम वैल्यू एडिशन करेंगे इंशाल्लाह, चीज़ भी मैन्युफैक्चर करेंगे। आइसक्रीम अभी इसी साल हमने किया है, उसका ट्रायल लिया है, सक्सेसफुल हुआ है वो। बटर मिल्क जैसे प्रोडक्ट्स करेंगे, और UHT मिल्क का भी हम करेंगे इंशाल्लाह। और उससे क्या होगा, जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे उसको किसी हद तक हम एड्रेस करेंगे। एंड जैसे मैंने अभी कहा कि यहाँ पे लोकली हमें डेयरी इक्विपमेंट्स की न सेल अवेलेबल है, न सेल सेंटर अवेलेबल है, न सर्विस अवेलेबल है। तो वो बिजनेस एवेन्यूज़ भी हम क्रिएट कर सकते हैं थ्रू सेटिंग अप ऑफ सेल्स एंड सर्विस सेंटर्स फॉर डेयरी इक्विपमेंट्स विद स्ट्रेटजी ऑफ एंड टू एंड सोल्यूशन। ऐसा नहीं हो कि कोई दुकान यहाँ पे डाल दे, एक इक्विपमेंट बेच दे, बाकी बोलेगा मुझे नहीं पता कैसे चलाना है, क्या करना है, बाकी बाहर आ। वैसा नहीं होना चाहिए, वो एंड टू एंड सोल्यूशन होना चाहिए। और जैसे मैंने इससे पहले भी अर्ज़ किया कि हम कैटल फीड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स का सेटअप कर सकते हैं, साइलेज मेकिंग कर सकते हैं, और मिनरल मिक्सचर्स भी उसमें ऐड ऑन होंगे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत स्कोप है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे अभी JKMPCL इनपुट सर्विसेज में टू सम एक्सटेंट है, जैसे हम टाइप 2 BIS स्टैंडर्ड कैटल फीड प्रोवाइड करते हैं अमूल ब्रांड की अपने फार्मर्स को। और जैसे अभी लंपी स्किन डिजीज़ का इरप्शन हुआ
J&K भी इफेक्ट हुआ, उससे बहुत सारे कैटल्स की डेथ हुई। तो उसमें हमने फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दे दी है अपने फार्मर, जो हमारे एसोसिएटेड फार्मर से। आई थिंक अराउंड 7 लाख टैबलेट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए। 80 लाख रुपीस। हाँ, तो वो भी इनपुट सर्विसेज में हम अभी कर रहे हैं। और डीवॉर्मिंग जो कैटल के लिए होता है, उसके लिए भी हमने मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और फ्यूचर में हमारा प्लान है कि जो AI वर्कर्स हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अडॉप्ट करें। उसमें अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दीज वर द अपॉर्चुनिटीज। लेट्स कम टू थ्रेट्स। ये जो पहला इसमें मेंशन किया है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब स्टैंडर्ड मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, ये बहुत ही बड़ा थ्रेट है हर किसी एंटरप्रेन्योर के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करेंगे, एक एंटिटी एस्टेब्लिश करेंगे प्रोसेसिंग प्लांट की, तो आप फोकस करेंगे क्वालिटी पे, जितना भी मतलब आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखें। लेकिन कल को आप जो मार्केट में जाएंगे, आपका कॉम्पिटिटर जो है वो सब स्टैंडर्ड दूध देगा। आपका स्टैंडर्ड है टोन मिल्क का मिनिमम 3% फैट फॉर एग्जांपल। तो मार्केट में ऐसे भी चीज़ें अवेलेबल हैं जिनका 1.5% होता है, 2% होता है, और रेट वही होता है जो टोन मिल्क का होता है। और उससे अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है लूज मिल्क। जो लूज मिल्क वेंडर्स हैं उनका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई ब्रांड ही नहीं है, कोई बैच कोडिंग ही नहीं है, और लोग ज़्यादा इंक्लाइंड है टुवर्ड्स बाइंग लूज मिल्क रादर देन प्रेफरिंग टू द प्रोसेसिंग मिल्क। वो भी एक बहुत ही बड़ा थ्रेट है डेयरी इंडस्ट्री के लिए। और दूसरा जो आपका पॉइंट था, दूसरा थ्रेट ये है कि मोर देन 95% ऑफ दिस मिल्क प्रोडक्शन इन J&K इज हैंडल्ड थ्रू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। उसमें भी बहुत काम करना है। और ये डॉक्टर आसिफ साहब इसी टाइम चले गए, इसमें कॉस्ट की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री की भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी कि इस 95% जो है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, इसको कैसे कम किया जाए। और इसके बाद एक और बड़ा थ्रेट है, वो है कि जो कॉस्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन एट फार्म लेवल, मतलब दिन ब दिन जो डेयरी फार्मर्स हैं वो डिसइंटरेस्टेड होते जा रहे हैं डेयरी फार्मिंग करने से, क्योंकि उनको जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट फार्म लेवल है वो मीट नहीं हो पा रहा है जो उनको मार्केट में रेट मिलता है। JKMPCL अभी 1000 विलेज में है, टोटल J&K में 8000 विलेज हैं, तो 7000 विलेज अभी अनकवर्ड है। जहाँ जहाँ JKMPCL है वहाँ पे रेट इज़ अराउंड 40 रुपीज़ पर लीटर। लेकिन जहाँ पे अभी JKMPCL नहीं पहुँच पाया है, आगे इंशाल्लाह पहुँचेंगे, वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन इज एट 20 रुपये का प्राइस है, और कभी पैसा भी नहीं मिलता, एक महीने 2 महीने बाद पैसा मिलता है। तो वो उस पर भी काम करने की बहुत ज़रूरत है। JKMPCL इज फोकसिंग ऑन दोज ग्रे एरियाज, बट इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन ओवरनाइट। जैसे डॉक्टर आसिफ साहब ने भी बोला कि कोविड के टाइम में दूध फेंका, वो उसके राइट्स आए थे मीडिया में। देखिए मैं बताऊँ आपको, 15 लाख लीटर का मार्केटेबल सरप्लस है, जैसे मैंने अभी पहली स्लाइड में बोला। J&K में कोविड में क्या हुआ कि पूरा जो बिजनेस है स्टैंड स्टिल पर रहा, सब बंद। खाली वाहिद एक JKMPCL था जिसने कोविड लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 लॉकडाउन्स में अपने फार्मर्स को और बाकियों को भी 42 करोड़ रुपीस का बिजनेस प्रोवाइड किया। और एक दूध का आखिरी कतरा जो बोलते हैं ना, दूध का आखिरी कतरा भी हमने कलेक्ट किया, उस टाइम भी हमने बंद नहीं किया। अब था कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 1 लाख लीटर दूध पर डे आता था, तो अब जो जिन लोगों ने दरवाजे बंद किए उन लोगों का दूध हमारी तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो गया, तो हम कैसे ले पाते उसको? उसका डिस्पोजल भी देखना था ना। मतलब ओवरनाइट चीज़ें पॉसिबल नहीं होगी कि अब्रप्टली किसी ने कहा कि हाँ जी हमारे गांव में कुफवारा के दूर दराज एक इलाके में होगा कि कल को वो वीडियो बनाएगा मेरा दूध कोई ले नहीं रहा है, तो वी कांट ब्लेम JKMPCL, आप वहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि ओवरनाइट थिंग्स विल नॉट हैपन। JKMPCL will address that, but it will take time. It will not happen overnight. So this was all about JKMPCL, and we at JKMPCL are very much optimistic and would strive to build a strategy to capitalize our strengths for harnessing the opportunities and by addressing threats and overcoming weaknesses. Thank you so much for being patient with us. Thank you. I am being accompanied by my colleague, Mr. Saeed Shahbaz Karim. He is from Lucknow and deputed here as Divisional Head of Fishing Operations on deputation from. So he has got a rich experience. He is alumni of
one of the elite institutions of India, Institute of Rural Management, IRMA. So you can take many insights from him. So, Assalamu alaikum. My name is Shabaz, as already mentioned by Farooq Saab. Basically, I am from Lucknow, and थोड़ा सा मैं कश्मीरी दिखता हूँ, इस चक्कर में मेरा कश्मीर ट्रांसफर हो गया है। तो मेरी एक ट्रेजेडी है। तो जो हमारे एमडी हैं श्री डॉक्टर आर.एस. सोरी साहब, एमडी ऑफ गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, विच इज द फेडरेशन बॉडी ऑफ अमूल। आई एम फ्रॉम GCMMF। उनको लगा मैं कश्मीरी हूँ, बिना पूछे ट्रांसफर हो गया मेरा यहाँ पर। तो मुझे तकरीबन ये 3रा साल है यहाँ पर। और थोड़ा सा पीछे और मैं बैकग्राउंड बताऊंगा, तो मैं डेयरी इंडस्ट्री से नहीं था। आई वाज वर्किंग विद एयर इंडिया। आई वर्क देयर फॉर 5 years एंड देन आई वेंट टू कतर एयरवेज। आई गॉट सिलेक्टेड इन कतर एंड आई वाज देयर फॉर 2 years इन कतर। बट काम में ना मजा नहीं आ रहा था। मैं पहले MBA से पहले मैं बीटेक हूँ मैकेनिकल, मशीनों के साथ वही दिन भर जहाज के साथ। तो पैसे मिल रहे थे बड़े अच्छे, कोई दिक्कत नहीं थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसा लगता था कमा रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, खत्म हो जा रहा है। तो मेरा एक दोस्त था, वो MBA कर रहा था फ्रॉम IRMA। हिंदी और उर्दू मिक्स चलेगी ना। तो मैंने उससे बात किया कि मुझे बताओ क्या है IRMA का। IRMA इज अ रियली वेरी गुड इंस्टीट्यूट। मैं पढ़ा हूँ इसलिए नहीं कह रहे हैं, आप लोग कभी मौका मिले तो आप जाइए। वहाँ ना ईमानदारी का, कोऑपरेटिव का इंजेक्शन लग जाता है। तो जो वहाँ का MBA का जर्नी रही 2 साल की, वहीं से मेरा GCMS में प्लेसमेंट हुआ। और कुछ दिन मैंने वहाँ GCMS में ट्रेनिंग वगैरह किया और उनको लगा कि मैं कश्मीरी हूँ, इधर भेज दिया कि तुम्हारा घर ट्रांसफर करते हैं। मतलब मुझे मेरे ट्रांसफर के टाइम बताया भी गया कि आपका घर ट्रांसफर हो गया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ और अपना ट्रांसफर ऑर्डर देखा भी नहीं, और घर पे बताया घर हो गया है। मेरे पापा बैंक में SBI में से अभी रिटायर हुए हैं, तो बैंक वाले डॉक्यूमेंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। उनके पास क्या, वो कह रहे हैं यार ये तो लखनऊ लिखा है, कोई कश्मीर लिखा है। तो हमने भी वापस पढ़ा, तो हमने अब्बा से कहा हो सकता है गलती से उसमें लिखा हो। एनीवे फिर जब हम गए मिले, फैमिली साहब थे नहीं, उनका टाइम दिया 15 मिनट का। तो उन्होंने कहा अरे तुम कश्मीरी नहीं हो। हमने कहा नहीं सर, क्या दिखते तो बिल्कुल कश्मीरी हो। अब हो गया है, अब जाओ। ये तो थोड़ी स्टोरी थी मैं कैसे यहाँ पर आया। बना ये क्वेश्चन हो सकता था सर आप लखनऊ के हो, MBA हो, व्हाई यू केम टू कश्मीर, यू हैव अपॉर्चुनिटीज इन बैंगलोर, हैदराबाद और समवेयर एल्स। तो ये दैट वाज द रीजन। बट जब आया यहाँ, आने के बाद जब देखा लोगों को मुझे लगा कि मेरी जरूरत है लोगों को यहाँ पर। मतलब फारूक भाई और सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बट डिसीजन मेकर की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बैठता नहीं था, जो भी आता था चला जाता था। तो तब से हम लोग, मैं 3 साल से हूँ, हम लोगों ने सबने मिल के बहुत काम किया, बड़ी मेहनत की है। प्लांट को भी काफी ऊपर लेकर के गए। और अभी प्लांट हमारा बुक्स में 50,000 की कैपेसिटी का है, बट वी कैन प्रोसेस मोर देन 1 लाख लीटर टुडे। आज हम 1 लाख लीटर से ऊपर दूध प्रोसेस कर सकते हैं, 1.5 लाख से ऊपर दूध रख सकते हैं। तो जब मैं आया था, आवर प्रोक्योरमेंट वाज अप्रॉक्स 20,000 इन 2020। नाउ वी आर टचिंग 1 लाख अप्रॉक्स। मार्केट भी बहुत अच्छा हो गया है। लोग नाउ पीपल आर नोइंग स्नो कैप। तो ये सारी चीजें मेहनत चल रही। इनपुट सर्विसेज में AI का, जैसे फारूक साहब ने बताया, डीवॉर्मिंग टैबलेट्स है, ये लंपी स्किन्स का है। और अभी हम लोग हर एक हफ्ते 15 दिन पे एक फार्मर्स का पूरा बैच भेज रहे हैं जालंधर, जो हमारा NDTV का ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ उनको पूरी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जा रही है। हाँ, शेल्टर मैनेजमेंट, जो फीड की प्रॉब्लम आ रही है, इनपुट जो कॉस्ट आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है। तो फार्मर्स को अगर सही नॉलेज नहीं होगी तो ऑफकोर्स इनपुट कॉस्ट ज्यादा आएगी। वो 200 रुपए का एक गाय को खिला रहे हैं, उस गाय से सिर्फ 200 ही रुपए की आमदनी हो रही है, तो क्या बेनिफिट है उनको? कुछ नहीं है। तो अभी ऐसे टेक्नोलॉजी आ गई है, चीजें आ गई है कि आप कम का खिला के 150 रुपए का ही इन्वेस्टमेंट करके यू कैन अर्न 300 रुपीज पर डे। तो एक गाय पे अगर 3-4 हजार रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 5-6 गाय है, तो 15-20,000 आदमी अर्न कर सकता है अपने बिजनेस से। तो ये इन सब चीजों के सारे पे काम हो रहा है हम लोग। और अभी एक बहुत अच्छी चीज फारूक भाई से मिस हो गई, एक प्लांट हम और बना रहे हैं। अभी हमारा जो चश्मशाही वाला प्लांट है, वहाँ वो VIP एरिया है, तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकते उसको। सो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग लैंड समवेयर इन नियर बड़गाम अप्रॉक्स 50 कनाल, और उस पर 2.5 लाख लीटर का प्लांट बनाएंगे और एक्सपेंडेबल टू 5 lakhs। तो उस पर जॉब अपॉर्चुनिटी, जो आफ्टर सेल सर्विस अपॉर्चुनिटी, 7,000 विलेजेस जो अनकवर्ड हैं, उनको कवर करने की अपॉर्चुनिटी, ये सारी चीजें क्रिएट होगी। तो कश्मीर, और ये एक्सक्लूसिवली JKMPCL जो है, मतलब मुझे ऐसा लगा अभी तक मेरे नज़र में कोई और ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई है कश्मीर के अंदर कि जो इस टाइप से काम कर रही है। बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ के यूथ के लिए धीरे धीरे वो जब देखेंगे, सीखेंगे, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। चाहे वो मशीनरी को लेकर के हो, चाहे इनपुट सर्विसेज को लेकर। हमारे पास क्या है कि हमारा अपना वेटनरी डॉक्टर हमने अभी हायर किया है कुछ दिन पहले ही, एक है हमारे पास, बट 6-7 हज़ार विलेज को 5 हज़ार को कवर करना इज इम्पॉसिबल। तो उसमें भी अगर आप लोगों में से कोई आएगा, हमारी मदद करेगा, हम उनको सपोर्ट करेंगे कि हम अपना एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ऐसा AI के लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं। मतलब इन हैंड करेंगे PPO मॉडल में या पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव मॉडल में कुछ करके, कि
लोगों को रोजगार भी मिले और फार्मर्स का भी प्रॉफिट को बेनिफिट हो। कोऑपरेटिव का एक मॉडल में ये है 80% पैसा जो भी आप प्रॉफिट कमा रहे हो वो फार्मर, जैसे फार्मर साहब ने बताया हम 40 रुपए लीटर दे रहे हैं, 40 नहीं दे रहे हैं, हम 40 से ज्यादा दे रहे हैं। रीजन अभी हम कुछ पैसे अपने पास रखते हैं क्योंकि पता नहीं ना कि आगे 4 महीने बाद क्या होने वाला है। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। वो सब लेने के बाद जो लास्ट में पैसे बचते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमको लास्ट में 2 करोड़ का फायदा होगा, तो हम 80% 2 करोड़ का 1 करोड़ 60 लाख रुपए फार्मर्स को जिस रेशियो में उन्होंने दूध दिए होंगे साल भर, मे भी किसी फार्मर्स के हक में 500 रुपए भी आ रहा होगा साल भर का, उसको 500 रुपए भी दे देते हैं बिल्कुल प्रॉपर वो पैसे, तो उनका कॉस्टिंग 1.5 रुपए और बढ़ जाती है। मैं सर लास्ट में एक लाइन बोलना चाहूंगा, ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। सर ये आपके लिए भी है, ना हम सफर ना हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। गुज़िश्ता साल के जख्मों हरे भरे रहना, आपके बरस भी जुलूस यहीं से निकलेगा। Please, I request Abdul Salam. Abdul Salam, he is our. Let's move it. Abdul Salam, we will felicitate our guests for such a wonderful talk, and we have a group discussion. We are having discussion. Abdul Salam, he will felicitate our guests. Now I request Abdul Salam, I request. वाकई आप लोग आए इस बिजनेस में और करें, अच्छी चीज है, मेहनत मांगता है और डेडिकेशन, बहुत प्रॉफिटेबल और बढ़िया बिजनेस। Thank you, sir. We have had a wonderful session this time. I think it stretched around 1 hour and 45 minutes. It was a wonderful experience, and we had a lot of interaction there, and a lot of queries were raised by the participants as well as the faculty members, and it was well replied by, and queries were cleared by the people from the JKMP. So I thank you, sir, for your visit here. We will like to see you here more and more.